Hello dear students, let us start with a new chapter under Science 2, that is lesson number 5, towards green energy. Before that students, we have completed lesson number 1, 2, 3, 4 and 6. Means out of the 10 chapters of Science 2, 5 chapters we have already completed. We are moving towards the next, that is chapter number 5, which is actually our 6th chapter of study. Okay, towards green energy. Now what is green energy? But students, before studying green energy, first of all we'll understand what is energy. Didn't we study this in 9th standard? What is energy? Yes? Capacity to do work. Right? Capacity to do work is called energy. Now, what do you mean by capacity to do work? I had given you example जो भी 9th standard में थे. They must have understood it very well. Like, suppose there are two boys A and boy B. दोनों को एक काम दिया. They have given one work. They have to climb 100 steps. Okay. Within 5 minutes. They have a particular time limit. Now, within 5 minutes, boy A climbed all the 100 steps. But boy B could climb only 60 steps. He got tired and he sat down there. अब अभी विनर के बारे में हम नहीं बात कर रहे, यहाँ पे हम कैपेसिटी के बारे में बात की. किसने सारे स्टेप्स चढ़ लिए विद इन द गिवन टाइम? बॉय ए. मीन्स उसका कैपेसिटी टू डू वर्क इज मोर, मीन्स हिज एनर्जी इज मोर. अंडरस्टूड? बॉय बी couldn't climb all the 100 steps. He got tired after climbing 60 steps, and that means his capacity to work is less, means his energy is less. So in simple words, energy is nothing but capacity to do work. Okay. Now, what is the SI unit of energy? We have studied SI unit of energy is joule. What is the CGS unit of energy? Yes, it is erg. Right students? We have studied the relation 1 joule is equal to 10⁷ erg. अगर आप लोगों को 9th स्टैंडर्ड का वर्क एंड एनर्जी चैप्टर याद है, सेकेंड लेसन ऑफ 9th स्टैंडर्ड, उसमें तुमने ये सब स्टडी किया है. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट, विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी? So the different types of energy are, which we see around us every day and we use it. Without energy, we can't live on it. So suppose for example, first is heat energy. Does your mother cook the food by using the gas? Gas, that is flame, fire, having heat. Without heat energy, the food will not get cooked. The food which you eat to get the energy in the body has a chemical energy, right? Next, you must have heard about nuclear energy. Don't worry, नहीं भी सुना होगा तो in this chapter we are going to study one of the type of nuclear energy. What is nuclear energy? कोई एक एटम सिलेक्ट करते हैं जो बहुत हैवी है. हैवी है मतलब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा है. वी नो मास ऑफ द एटम इज द एडिशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ओके, सो जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स उतना वो एटम का मास हैवी. सो ऐसे हैवी एटम के न्यूक्लियस को हम एक टेक्निक यूज करके स्प्लिट करते हैं, ब्रेक करते हैं, एंड वो जो हैवी एटम है वो दो छोटे छोटे लाइटर एटम्स में कन्वर्ट हो जाता है. एंड उस वक्त जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी. ओके, सो दैट एनर्जी इज न्यूक्लियर फिशन एनर्जी. न्यूक्लियर एनर्जी के वापस दो टाइप्स है. न्यूक्लियर फिशन means by breaking the atom to release the energy, and nuclear fusion. अब फ्यूजन में दो लाइट एटम्स को, लाइट मतलब जिनका मास कम है, दो लाइट एटम्स को कंबाइन करके उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. सो व्हेन द हेवी एटम ब्रेक्स, एनर्जी इज रिलीज, दैट इज फिशन एनर्जी. व्हेन द टू लाइट एटम्स कंबाइन, दैट टाइम आल्सो एनर्जी इज रिलीज. जब दो लाइट एटम्स कंबाइन होते हैं उससे एक हेवी एटम प्रोड्यूस होता है. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, एट प्रेजेंट when you are watching my video, I guess you are watching it with a concentration. Can you hear my voice? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Correct. This is which energy? Sound energy.
यू कैन सी माई वीडियो. अगर यही चलो अब ये सपोज लाइट चला गया, अंदर मैं पढ़ा रही हूँ, कैन यू सी? नो, बट यू कैन सी इट नाउ हियर बिकॉज ऑफ द light energy. And which is the ultimate source of energy for the entire universe? Correct. Solar energy. Solar energy है जिससे ये बाकी सारे energies convert होते जाते हैं. We have studied according to law of conservation of energy that energy can neither be created nor be destroyed. It can be transformed from one form to another form. यहाँ पे एक एग्जाम्पल देती हूँ. सोलर एनर्जी ऑलरेडी नेचुरली तैयार है. सोलर एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं प्लांट्स, प्लांट्स बनाते हैं फूड, दैट इज केमिकल एनर्जी. ये केमिकल एनर्जी दैट इज द स्टोर्ड एनर्जी. हम फूड कुक करते हैं बाय यूजिंग हीट. हीट एनर्जी कहाँ से आता है? हमारे घर में जो गैस है उसमें ब्यूटेन गैस है, सिलेंडर में ब्यूटेन गैस है. वो ब्यूटेन गैस क्या है? जब हम मर जाते हैं तो हमारी बॉडी डिकम्पोज होती है, दैट फॉर्म्स द फॉसिल फ्यूल. सम फॉसिल फ्यूल्स लिक्विड है, सम फॉसिल फ्यूल्स गैसियस है. Are you getting that? Liquid fossil fuels means petrol, diesel. Gaseous fossil fuel means the gas which is there in our cylinder. Yes, ये हमारे प्लांट एनिमल की बॉडीज डिकम्पोज होके ये तैयार हुआ है. सम फॉसिल फ्यूल्स आर सॉलिड जैसे कि कोल. गेटिंग दैट? सो ये सारे एनर्जीज कहाँ से आए हैं? फ्रॉम वन एनर्जी टू अनदर एनर्जी कन्वर्ट हो रहे हैं. ओके, और भी बहुत सारे फॉर्म्स है बट आई विल स्टॉप हियर. सो दीज आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, सम ऑफ द एग्जांपल्स. बहुत एन नंबर्स ऑफ एनर्जीज है. The next point is, which are the two main forms of energy? So there are two main forms of energy, that is kinetic energy and potential energy. Did we study this also in 9th standard? Again I'll tell you, 9th standard में हमने ये सब साइंस 1 में पढ़ा था अंडर फिजिक्स, लेकिन ये साइंस 2 में बायोलॉजी में भी एप्लीकेबल है. समझ में आ रहा है? सो 9th स्टैंडर्ड का बेस अगर पक्का है तो ही 10th स्टैंडर्ड अच्छे से समझेगा. सो काइनेटिक एनर्जी मीन्स एनर्जी प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन और द पार्टिकल्स विच आर इन मोशन. पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी विच इज प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स पोजिशन और स्टेट. ओके, नाउ एनर्जी. एनर्जी, व्हाई टू स्टडी अबाउट एनर्जी? ग्रीन एनर्जी क्या है? सून यू अंडरस्टैंड. But why to study energy? क्यों टाइम वेस्ट करना है अपना? No. Okay, can you tell me which are our basic needs of the life? 3 basic needs of the life पढ़ा होगा ना बचपन से, प्री प्राइमरी स्टैंडर्ड से. करेक्ट? फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स. सो फूड, खाना तो चाहिए, उसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते. शेल्टर, रहने के लिए एटलीस्ट एक सूटेबल प्लेस चाहिए, राइट? एंड क्लोथ्स आर द 3 बेसिक नीड्स ऑफ द ह्यूमंस, राइट? बट नाउ एनर्जी is also included in one of the primary needs of humans. You just imagine, right from the morning you get up till the night, even after you sleep, do you need the energy? एक one of the important type of energy मैंने नहीं लिखा purposely, electric energy, current energy, right? Without electricity we can't do any work. And अभी तो बहुत ही ज़्यादा basic, मतलब ये सबसे भी ज़्यादा ये ज़रूरी हो चुका है अभी. ना मैं ऑनलाइन लेक्चर्स ले सकती हूँ, ना तुम ऑनलाइन लेक्चर्स पढ़ सकते हो विदाउट द एनर्जी. अंडरस्टूड? सो along with these 3 basic necessities, energy is also included in that. Okay, that is why we need to just imagine ना, सुबह उठते ही या रात को सोने के बाद भी फैन नहीं होगा, एसी नहीं चलेगा तो नींद नहीं आती, राइट? सुबह उठने से रात को सोने तक एवरी वन और द अदर थिंग, फ्रिज, टीवी, कंप्यूटर, लाइट, मिक्सर, फैन, स्कूल में अगर जाते हो तो स्मार्ट क्लास, ई बोर्ड, राइट? एवरी वन और द अदर थिंग इज डिपेंडेंट ऑन द इलेक्ट्रिक एनर्जी. सो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर we are going to study generation of electric energy, how the electric energy is produced. Again I will say, it is not created, it is just produced by converting one type of energy into another type. Okay, so the next point, generation of electric energy. So let me write here
The electric energy is generated in a power plant, or it is also called as power station. Means it is a kind of setup of a huge machineries where proper energy source is used. That energy source helps to run a turbine. Turbine means a kind of wheel. The wheels of the turbine are connected to this energy source. Okay, ये wheel जैसे ही rotate होने लगता है, ये wheel का one of the arm, sorry, no, not one of the arm, that is shaft, is connected to a generator. Students, साइंस 1 में लेसन नंबर 4 पढ़ा होगा, उसमें मोटर एंड जनरेटर पढ़ा होगा. ओके, तो जनरेटर में जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ EMI, एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा है क्या? रिमेंबर? ओके, आई विल एक्सप्लेन. अब ये टरबाइन जैसे ही रोटेट होने लगता है बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी, ये शाफ्ट भी रोटेट होता है. शाफ्ट रोटेट होता है तो जनरेटर के अंदर का मैग्नेट रोटेट होता है. यहाँ का जो मैग्नेट है वो रोटेट होता है. जैसे ही मैग्नेट रोटेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है. इट ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, and due to change in magnetic field, electric current is produced, not produced, electric current is induced in a conductor. Means from the generator, electric energy is produced. Suppose यहाँ पे energy source हमने लिया water falling from a height. height से water नीचे गिर रहा है. ये water किस पे गिर रहा है? Turbine पे. Now you tell me, water is falling. Is it steady or falling? Falling means it is in moving position. So इसमें कौन सा energy है water में students? Correct. Kinetic energy. So kinetic energy of the water is used to rotate the turbine. So here it converts into kinetic energy of turbine. Due to kinetic energy of the turbine, the magnet starts rotating and produce electric energy. Means the kinetic energy of the water is converted into kinetic energy of turbine, and kinetic energy of the turbine is converted into electric energy in the generator. So did we generated electric energy in this setup that is called power plant or power station. So to generate the electric energy, we need to set up a power plant which needs 3 important things. First, proper energy source. Second, it needs a turbine. अब ये turbines भी अलग अलग टाइप के होते हैं. यहाँ पे वाटर की वजह से टर्बाइन रोटेट हो रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एज वाटर टर्बाइन. यस, व्हाट इट इज कॉल्ड एज वाटर टर्बाइन. मींस ये जो टर्बाइन है ये एलॉय का बना होगा, ठीक होगा. एलॉय का क्यों? प्योर मेटल का क्यों नहीं बनेगा? ये करोड हो जाएगा पानी के कांटेक्ट में आके. सपोज ये आयरन का बनाया हमने तो जल्दी रस्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा. सो एज पर हम एनर्जी सोर्स क्या यूज कर रहे हैं उस हिसाब से हम टर्बाइन का टाइप भी यूज करते हैं. एंड along with the turbine we need a generator which works on the principle of electromagnetic induction, due to which electric energy is generated. Okay, now let me explain you what is electromagnetic induction. Students, in 9th standard we have studied current electricity, that when any copper wire is connected to a cell, that is to a battery, cell के अंदर chemical reaction होता है, that is called potential difference, की वजह से copper wire के electrons flow होने लगते हैं. जैसे electrons flow होते हैं current produce होता है. बट यहाँ पे ना हम cell use कर रहे हैं, सिर्फ copper wire use कर रहे हैं और उसमें current produce कर रहे हैं. कैसे? See here, electromagnetic induction. तुमने ये Faraday's law करके पढ़ा होगा in 4th chapter of science 1. Okay, now what is that?
सपोज ये है बार मैग्नेट हैविंग नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एंड यहाँ पे ये है copper wire. This copper wire is connected to a galvanometer. Yes, galvanometer, not to a cell. मतलब यहाँ पे सेल नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट फ्लो इन वन डायरेक्शन, राइट? तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, बट होगा कैसे? ये जो वी हैव स्टडीड, मैग्नेट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट? That always move from north pole to south pole, north pole to south pole. अब ये है मैग्नेट, ये है कॉपर वायर. मैं ये मैग्नेट को कॉपर वायर के अराउंड रोटेट कर रही हूँ. कभी ये मैग्नेट कॉपर वायर के नजदीक आ रहा है, कभी दूर जा रहा है, कभी नजदीक आ रहा है, कभी दूर जा रहा है. नाउ यू टेल मी, जब जब ये मैग्नेट कॉपर वायर के नजदीक आएगा, मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्ग अराउंड द कॉपर वायर. जैसे ये दूर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉपर वायर विल बी वीक. मीन्स जब जब ये मैग्नेट कॉपर वायर के अराउंड घूम रहा है, कभी मैग्नेटिक फील्ड वीक है, कभी स्ट्रॉन्ग है, कभी वीक है, कभी स्ट्रॉन्ग है. आर यू गेटिंग मी? सो टेल मी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है कि चेंज हो रहा है? चेंज हो रहा है. नाउ ड्यू टू चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, कॉपर वायर के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट फ्लोइंग इन अ मोशन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट. मीन्स विदाउट यूजिंग पोटेंशियल डिफरेंस, विदाउट यूजिंग अ बैटरी और अ सेल, करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड. आर यू गेटिंग इट? यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं बोलते, यहाँ पे इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड. हमने जानबूझ के यहाँ पे करंट इंड्यूस किया है बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर, अराउंड द कंडक्टर. कॉपर वायर मतलब क्या है? कंडक्टर. व्हाट इज अ कंडक्टर? प्लीज डोंट टेल मी बस का कंडक्टर. यहाँ पे कंडक्टर मीन्स द वन who can carry current in it, okay, because it has a free electrons which will start moving in one direction and automatically the electric current will be induced due to change in the magnetic field. So that is electromagnetic induction. Means due to change in the magnetic field, electric current is induced in a conductor. Now this can be achieved in two ways. By keeping the conductor stationary and moving the magnet around it. देखो, ब्लू मतलब कंडक्टर, ब्लैक मतलब मैग्नेट. कॉपर वायर कंडक्टर स्टेशनरी है, हिल नहीं रहा है, बट मैग्नेट इज मूविंग अराउंड इट. इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है. सो बाय दिस वे इलेक्ट्रिक करंट कैन बी इंड्यूस्ड. और द अदर वे, कीपिंग द मैग्नेट स्टेशनरी एंड मूविंग द कंडक्टर अराउंड. दोनों में से कुछ भी करो ना, वही होने वाला. जब जब ये कॉपर वायर दूर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा. जब तब दे नजदीक आएगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा. मीन्स अगेन देयर विल बी चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट विल बी इंड्यूस्ड. ओके, नाउ लेट मी टेल यू, इन पावर प्लांट्स कंडक्टर इज स्टेशनरी बट द मैग्नेट कीप्स ऑन रोटेटिंग. मेजॉरिटी पावर प्लांट्स में कंडक्टर स्टेशनरी होता है, मैग्नेट रोटेट होता है. सिर्फ कुछ पावर प्लांट्स है जहां पे मैग्नेट स्टेशनरी होता है और कंडक्टर रोटेट होता है. आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल अंडरस्टूड टिल हियर. सो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन? व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? EMI. ड्यू टू चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, अगेन आई रिपीट, ड्यू टू चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, electric current is induced in a conductor. That is called electromagnetic induction. Okay, I hope every one of you have understood this. So आज हमने starting में क्या पढ़ा? What is energy? What is its SI unit? What is its CGS unit? Which are the different types of energy and which are the different forms of energy? The next we studied that energy is one of the primary need of the humans along with food, shelter and clothes. Next to that we studied, if you want to, क्योंकि देखो on a large scale every country uses, हर कोई डिपेंड है इलेक्ट्रिसिटी पे. ये आता कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी? जनरेट कहाँ से होता है? नाउ डोंट टेल मी फ्रॉम द MSCB बोर्ड. वहां पे वो पावर स्टेशंस का कनेक्शन है. आर यू गेटिंग मी? इन दिस चैप्टर जैसे से हम टोटल
5 टाइप्स ऑफ पावर स्टेशन पढ़ने वाले हैं. लेट मी जस्ट टेल यू द नेम. थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, नेचुरल गैस पावर प्लांट, विंड एनर्जी पावर प्लांट एंड सोलर पावर प्लांट. करेक्ट. हम 5 टाइप्स के पावर प्लांट पढ़ने वाले हैं. मीन्स द पावर स्टेशंस वेयर बाय यूजिंग द पर्टिकुलर सोर्स ऑफ एनर्जी electricity is produced. Okay students, so let us start with the first type of power plant, that is thermal power plant. And today I will send you only video. Soon I will send you the notes. पे अटेंशन प्रॉपरली. ये आंसर लिखने का एक प्रॉपर वे है. बिकॉज वन ऑफ द पावर प्लांट इन बोर्ड एग्जाम कैन कम फॉर डायरेक्टली 5 मार्क्स. एंड कैसे आएगा क्वेश्चन वो भी मैं बताऊंगी. तो स्टूडेंट सबसे पहला पावर प्लांट या पावर स्टेशन कौन सा पढ़ने वाले हम? थर्मल एनर्जी बेस्ड power plant, or in short it is also called as thermal power plant. Students, I told you whichever power plant it is, सबसे पहला we need the source of energy. एक एनर्जी फिर अगले एनर्जी में एंड फाइनली इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है. तो ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी द नेम ऑफ द पावर प्लांट इज गिवन. जैसे कि अगर मैं बोलूंगी सोलर एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट, मतलब वहां पे सबसे पहला एनर्जी क्या होगा? सोलर एनर्जी. ओके फाइन. थर्मल एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट का मैं एकदम शॉर्ट में डायग्राम निकाल रही हूँ. यू डोंट नीड टू ड्रॉ द डायग्राम निकालना नहीं है, बट याद रखना है. जस्ट ओपन योर टेक्स्ट बुक, ओपन दिस चैप्टर. अलग अलग पावर प्लांट के स्कीमैटिक्स दिए है. स्कीमैटिक्स मीन्स एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है. ओके बहुत सिंपल. सबसे पहला ये है कंबशन चेंबर. Let me tell you, the source of energy used in this power plant is coal. कोयला रहता है ना, नॉट चारकोल. लकड़ी जलाने के बाद जो बनता है वो चारकोल होता है, लेकिन कोल माइनिंग करके पत्थर के जैसा रहता है ये सॉलिड कोल. ओके, कोल को यहाँ पे बर्न करते हैं. कंबशन मीन्स बर्निंग बाय सप्लाइंग इनफ अमाउंट ऑफ एयर. इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन द कोल इज बर्न्ड हियर. दैट इज कॉल्ड कंबशन चेंबर. जब कोल बर्न होता है, स्वीट कॉर्न खाते हो ना, राइट, हाथ गाड़ी पे मिलता है, तो वो कोल पे ही उसको रोस्ट करते हैं. कोल बर्न होता है तो हीट प्रोड्यूस होता है, राइट. सो व्हेन द कोल इज बर्न्ड. अच्छा, कोल के अंदर कौन सा एनर्जी है? सबसे पहले केमिकल एनर्जी. The chemical energy of the coal after burning converts into heat energy. So that is called thermal energy. समझ में आ रहा है? That is why the power plant name is thermal energy based power plant. अब यहाँ पे ये जो पाइप है ना, इसके अंदर से वाटर पास हो रहा है, बट कोल की हीट एक्सट्रीमली हाई होती है. तो ये जो चेंबर है,
ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं बॉयलर. बॉयलर मीन्स ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ हीट ये अंदर का वाटर बॉईल होने लगता है. इतना बॉईल होता है कि वो डायरेक्टली स्टीम में कन्वर्ट होता है. सो ये जो स्टीम है, व्हाट इट इज? स्टीम. इज इट इन मोशन? स्टीम एक जगह पे रुकता है क्या? नहीं, इट कीप्स ऑन फ्लोइंग. सो द थर्मल एनर्जी ऑफ द कोल इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी इन स्टीम. ओके, अब ये स्टीम आता है इधर टरबाइन के इधर. यू नो ना, टरबाइन मीन्स दिस व्हील. स्टीम फ्लो होगा और स्टीम का प्रेशर, फ्लो का प्रेशर इतना हाई होगा कि उसकी वजह से टरबाइन रोटेट होना स्टार्ट होगा. सो दैट विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन. एंड जैसे ये टरबाइन रोटेट होगा, यहाँ पे जनरेटर के अंदर का क्या रोटेट होगा? कंडक्टर के मैग्नेट. आई टोल्ड यू इन थर्मल पावर, सॉरी इन पावर प्लांट्स कंडक्टर इज स्टेशनरी, मैग्नेट कीप्स ऑन रोटेटिंग. तो ये जो रोटेटिंग टरबाइन का ये जो शाफ्ट है, व्हाट इट इज कॉल्ड? शाफ्ट. ये भी रोटेट होता है, ये मैग्नेट से कनेक्टेड होता है. मैग्नेट रोटेट होने लगता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है एंड जनरेटर से प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी. इलेक्ट्रिक एनर्जी. So students, I have shown you here transformation of energy in thermal power plant. कैसे chemical energy of the coal is converted into heat, that is thermal energy, then into kinetic energy of steam in the boiler, then into kinetic energy of turbine and finally into electric energy of the generator. अब यहाँ पे coal burn होगा. It will produce large amount of carbon dioxide, sulfur oxide, nitrogen oxide. That smoke will be given out from this tower. यहाँ पे दो टॉवर दिखेंगे तुमको. यहाँ पे एक टॉवर है, यहाँ पे एक टॉवर है. This tower is called stack. That is chimney of a very high height. बहुत लंबे हाइट का होता है ताकि एकदम ऊपर जाके ये स्मोक रिलीज हो तो एयर पोल्यूशन थोड़ा कम हो. बट अल्टीमेटली होता ही, ये इसका डिसएडवांटेज है. बहुत हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होता है. That leads to acid rain in the area where these power plants are there. Okay, and high contamination of the air. Okay, अब ये स्टीम जैसे ही टरबाइन को रोटेट कर देता है, उसका प्रेशर एंड एनर्जी कम हो जाता है एंड देन इट इज ब्रॉट बैक इनटू दिस पाइप सिस्टम. दिस इज कॉल्ड कूलिंग टॉवर. तो स्टीम यहां से फ्लो होगा. ये है कंडेंसर. कंडेंसर मीन्स जो स्टीम की हीट निकाल लेगा कंडेंसर में, कूलिंग टावर में, वापस इट विल कन्वर्ट, द स्टीम विल कन्वर्ट इनटू वाटर एंड दिस वाटर थ्रू दिस पंप विल फ्लो बैक टू दिस ट्यूब. वापस ये ट्यूब में पानी आया, हीट की वजह से स्टीम में कन्वर्ट हो गया. सो इज इट रिसाइकलिंग ऑफ वाटर. क्योंकि इतना सारा पानी रोज रोज कहाँ से लाए? ये छोटा सा नहीं होता पावर प्लांट, बहुत ह्यूज होता है. लैक्स ऑफ लीटर्स ऑफ पानी लगता है यहाँ पे, रोज इतना कहाँ से लाए? तो यही वाटर रिसाइकल होते रहता है. ओके, सो इन कूलिंग टावर सम अमाउंट ऑफ स्टीम इज गिवन आउट व्हेन द स्टीम आर गेटिंग कूल्ड बैक टू वाटर. अंडरस्टूड? सो ये जो मैंने फ्लो चार्ट निकाला है, यू आर गोइंग टू ड्रॉ इन दिस वे ओनली इन द बोर्ड एग्जाम. एंड ये जो भी मैंने किया है, ये बॉक्सेस, ये अंदर का लिखा हुआ, ये एरो, एवरीथिंग शुड बी डन विथ पेन ओनली. यहाँ पे पेंसिल यूज नहीं करना. इवन ये बॉक्स बनाने के लिए, एरो निकालने के लिए भी पेन ही यूज करना है. नो यूज ऑफ पेंसिल. अगेन आई रिपीट. ओके, सो दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन थर्मल एनर्जी पावर प्लांट. एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ देयर इज अ फ्लो चार्ट ऑफ वर्किंग ऑल्सो. वर्किंग कैसे होता है ये पावर प्लांट का. अब मैं ये डायग्राम इरेज करती हूँ. Otherwise, I will erase this energy transformation and I will write the flow chart of working. So just now we studied coal is burnt and in the boiler steam is produced. Then from the steam it goes to the turbine and from the turbine it goes to generator. From the boiler, from the turbine the steam is condensed. So here will be
condenser, and again the water will be used in the boiler. So this is the schematics or this is the flow chart of working of power plant, and जो मैंने पहले निकाला था वो था flow chart of energy transformation. Now the third and the last point, disadvantage. ये जो पावर प्लांट है इसका एडवांटेज क्या है? लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड विच इज यूज्ड फॉर आवर कंट्री, राइट? बट डिसएडवांटेज सबसे पहले हमने पढ़ा, इट कॉजेज मेजर अमाउंट ऑफ एयर पोल्यूशन बाय रिलीजिंग दिस हार्मफुल गैसेस. सेकेंड, इसमें से कार्बन पार्टिकल्स भी निकलते जो जाके आजू बाजू के एरिया में सेटल हो जाते हैं. दे आर कॉल्ड सूट पार्टिकल्स. एकदम फाइन कार्बन पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक, जो हमको दिखते भी नहीं, ब्रीदिंग के थ्रू हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाते हैं एंड दे कॉज सीवियर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. द वर्कर्स हु वर्क इन दिस पावर प्लांट्स दे सफर इन द लेटर एज, दे सफर द प्रॉब्लम्स ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. एंड थर्ड डिसएडवांटेज, टेल मी, कोल is a renewable energy source or non-renewable? Yes. Does it have limited deposits? Coal mines बहुत कम है, 1 साल 2 साल 10 साल और 200 साल ज्यादा से ज्यादा कोल माइंस रहेंगे, हम उससे कोल निकालते रहेंगे, उसके बाद कोल खत्म. बिकॉज अभी जो कोल प्लैनेट अर्थ पे अवेलेबल है, और प्लैनेट अर्थ पूरा हमारा नहीं है, हमारा सिर्फ इंडिया है प्लैनेट अर्थ पे. सो इंडिया में जितने भी कोल माइंस है, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट प्रेडिक्शन, ज्यादा से ज्यादा 200 ईयर्स तक आगे वो चलेगा. उसके बाद सारा कोल फ्रॉम द प्लैनेट अर्थ, फ्रॉम द इंडियन लैंड खत्म हो जाएगा, एंड इवन फ्रॉम द अर्थ ऑल्सो. उसके बाद ये पावर प्लांट्स कुछ फायदा नहीं, क्योंकि सबसे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? कोल. वही नहीं रहेगा, लिमिटेड डिपॉजिट से, फॉसिल फ्यूल है, ये बना है 4-5 मिलियन सालों के बाद. आर यू गेटिंग दैट? सो दैट इज वाई द थर्ड डिसएडवांटेज, इन फ्यूचर there will be shortage of coal, so these power plants can't produce electric energy effectively. Understood? So 3 disadvantage. So students, board exam में इसके ऊपर 5 marks का question कैसे आएगा? They will give you this diagram. कुछ नाम वगैरह नहीं देंगे, कुछ नाम नहीं देंगे. From the diagram सबसे पहला question they will ask you, identify the type of power plant from the diagram. Second, write the flow chart of working. Third, write the flow chart of energy transformation. And fourth, what are the disadvantage? 5 marks का question, बहुत easy. तो अच्छे से पढ़ो. In the live lecture also, I will explain you how to write the notes. Now I will stop here today. We have completed first power plant. In the next lecture, we will study the next power plants. Okay? Thank you.